Students, today our topic is classification and nomenclature of ethers. Classification and nomenclature of ethers. यानी what are ethers? पहले हम देखेंगे ethers क्या होते हैं, फिर इनकी classification क्या है, उसके बाद उसका nomenclature यानी common system में कैसे नाम दिया जाता है और IUPAC system में कैसे दिया जाता है, नाम दिया जाता है. तो पहले हम लिखेंगे ethers. Ethers, those compounds which are having O as their functional group, O as O functional group, जिनका functional group O है, functional group, those compounds having O as their functional group are known as ethers. Their general formula is their general formula is ROR dash. Where this means this is ethereal group. This is the functional group of ethers. Where R may be an R and R dash, may be an alkyl group or it may be an aryl group. It may be an alkyl group or aryl group. It may be an alkyl group or an aryl group. Yani the compounds having O functional group. The compounds having O functional group are known as ethers, and their general formula is ROR dash. This R and R dash may be either same or they may be different. They may be same or they may be different. And their general formula where R and R dash, they may be alkyl groups or they may be aryl groups. These are ethers. Classification of ethers. Classification of ethers. Classification of ethers. देखिए, ethers are classified into aliphatic ethers, aliphatic ethers, and aromatic ethers. Aliphatic ethers and aromatic ethers. Ethers are classified into aliphatic ethers and aromatic ethers. Aliphatic ethers are those ethers. Aliphatic ethers are those ethers in which both R and R groups are alkyl groups. Aliphatic ethers are those ethers in which both R and R, that means R and R dash, they are alkyl groups. Yeah, aliphatic ethers are those ethers which contain both alkyl groups, which contain two alkyl groups attached or linked to the functional group, linked to the oxygen atom. Aliphatic ethers are those ethers which contain both alkyl groups attached to the oxygen atom. For example, ROR dash, तो हम इस तरह लिखेंगे, R को रिप्लेस करेंगे CH3 से, यहाँ O है, this is also CH3. ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है. तो जब हम इसको नाम पढ़ेंगे, मिथाइल दो बार है, डाई मिथाइल ईथर पढ़ेंगे इसको, डाई मिथाइल ईथर. इसी तरह अगर हम इस तरह लिखेंगे CH3 CH3O C2H5, तो इसको पढ़ेंगे हम ईथाइल मिथाइल ईथर. दोनों अल्काइल ग्रुप है. दीज आर एलिफेटिक ईथर. ईथाइल मिथाइल ईथर, दीज आर एलिफेटिक ईथर. इसी तरह हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं CH3O CH2 CH3. इसको पढ़ सकते हैं प्रोपाइल मिथाइल ईथर. प्रोपाइल नहीं, मिथाइल प्रोपाइल ईथर. ये मैं बाद में बताऊंगा मिथाइल क्यों मैंने पहले लिखा. मिथाइल प्रोपाइल ईथर. तो
These are aliphatic ethers. मैंने कहा ethers are the compounds having O. Ethers are the compounds having O functional group. इनका functional group जो है वो O है, and this O is between the two alkyl or allyl groups. Ethers are the compounds having O as their functional group, and their general formula is ROR dash, जो मैंने पहले ही बताया. Where R and R dash may be alkyl groups or they may be aryl groups linked to the oxygen atom. And these ethers are classified into the aliphatic ethers and aromatic ethers. पहले मैंने aliphatic ethers आपको दिखाया. Aliphatic ethers are those ethers which contain both alkyl groups linked to the oxygen atom. Or aliphatic ethers are those ethers in which both R and R dash are alkyl groups, जिसमें दोनों R और R dash जो होगा ये alkyl groups ही होंगे, इसमें कोई aryl group नहीं होगा. यानी फिर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है CH3O CH3. CH3 को हम मिथाइल पर से पढ़ते हैं, तो ये CH3 है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये अल्केन से निकलते हैं, फिर अल्काइल ग्रुप्स हैं. CH3O CH3, इसको ये दो बार मिथाइल है, हमने इसको नाम पढ़ा है डाई मिथाइल, तो इसका नाम है ईथर. जब हम कॉमन नेम पढ़ेंगे फिर आपको मैं समझाऊंगा. तो इसको CH3O C2H5 ये ईथाइल है, फिर ये मिथाइल है, फिर पढ़ेंगे हम ईथाइल मिथाइल ईथर अल्फाबेटिकली. फिर इस तरह CH3O C2H5 ये प्रोपाइल है, इसको पढ़ेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर. These are aliphatic ethers. और इसमें यही बात याद रखना है कि दोनों अल्काइल जो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड दोनों आर हैं वो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं. यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो हैं उनको हम कहेंगे एलिफेटिक ईथर्स. उसके बाद एरोमेटिक ईथर्स. Those ethers which contain one or more aryl groups attached to the oxygen atom. Those ethers which contain, in which, या हम इस तरह के लिख सकते हैं R dash. Those ethers in which either R or R dash or both R and R dash are aryl. तो these aromatic ethers are also classified. तो हम एग्जाम्पल आपको दे देंगे. यहाँ हम CH3 लिखेंगे, यहाँ O लिखेंगे, यहाँ C6H5. तो आपको ये समझ आया होगा ये एराइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है. इनको कहेंगे हम एरोमेटिक ईथर्स. एरोमेटिक ईथर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और बोथ R and R dash as aryl. फॉर एग्जाम्पल इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल फिनाइल और ईथर. These are aromatic. तो हम इस तरह पढ़ सकते हैं इसको C6H5O, ये दोनों तरफ फिनाइल है, तो हम इसको पढ़ेंगे डाइफिनाइल ईथर. जिस तरह वहां डाइमिथाइल ईथर आता था, डाइफिनाइल ईथर. तो जब इसको डाइफिनाइल ईथर, तो इसका मतलब ये निकलता है these aromatic ethers are further classified into two types. एक को हम कहेंगे एराइल, एक को कहेंगे अल्काइल एराइल ईथर्स. इनको दूसरा नाम है फेनोलिक ईथर. तो दूसरा है एराइल ईथर्स. तो इसका मतलब है the aromatic ethers are further classified into two types: alkyl aryl ethers और phenolic ethers. तो alkyl aryl ethers क्या होते हैं? Those ethers which contain one alkyl group and one aryl group. One alkyl group, those ethers having one alkyl group, one alkyl group and one aryl group attached या linked to
ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो आपको समझ आया, यानी अल्काइल एराइल ईथर, दोज ईथर्स हैविंग वन अल्काइल and one aryl group, one alkyl group and one aryl group attached linked to the oxygen atom, those are known as alkyl aryl ethers। तो सिंपली आपको ये समझ आना चाहिए, यानी जिन ईथर्स को ऑक्सीजन एटम के साथ एक एराइल ग्रुप होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा, उनको कहेंगे हम अल्काइल एराइल ईथर्स। तो मैं आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। ये CH3OC6H5, इसमें C6H5 जो है ये फिनाइल ग्रुप है, दिस इज एराइल ग्रुप, और CH3 ये अल्काइल ग्रुप है। इसमें एक अल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है। This type of ethers is called alkyl aryl ethers, and these are also known as phenolic ethers, phenolic ethers। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मतलब ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप है अल्काइल एराइल ईथर्स और फिनोलिक ईथर्स, दोज ईथर्स having one alkyl group and one alkyl group and one aryl group linked to the oxygen atom are known as alkyl aryl ethers, or those are known as phenolic ethers। तो फिर एराइल ईथर्स किनको कहते हैं? उसके बाद है दूसरा टाइप जिनका नाम है एराइल ईथर्स। एराइल ईथर्स, एराइल ethers, those ethers which contain both R and R dash as aryl groups, which having two aryl groups, having both the groups attached to the oxygen atom are aryl, where both the groups attached to the oxygen atom are aryl। For example, R O R dash, those groups where R and R dash are both aryl, जहां R भी होगा aryl और R dash भी होगा aryl, are both aryl, those are known as aryl ethers, which contain both the groups linked to the oxygen atom, or having both the groups linked to the oxygen atom, they are aryl। For example, मैं आपको दिखाऊंगा C6H5O, C6H5O, ये भी aryl है, ये भी aryl है, both the groups are aryl। तो इसको कहेंगे सीधा aryl ethers। जब एक ग्रुप होगा अल्काइल, दूसरा ग्रुप होगा एराइल, उनको कहेंगे अल्काइल एराइल ईथर। तो इसको कहेंगे एराइल ईथर्स। जब इसको नाम दे देंगे तो ये है डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर। तो this is the classification of ethers। Ethers are classified into aliphatic ethers and aromatic ethers। Aliphatic ethers are those ethers in which both the groups linked to the oxygen atom are alkyl। For example, they may be ethyl, they may be methyl, they may be ethyl, or they may be propyl, or they may be ethyl, methyl, etc. Aromatic ethers are those ethers in which both the groups attached to, in which one or two groups or both the groups attached to the oxygen atom are aryl or aryl। These aromatic ethers are classified into two types: alkyl aryl ethers और phenolic ethers and aryl ethers। तो मैंने आपको वो दिखाया alkyl aryl ethers क्या है, phenolic ethers क्या है और वो क्या है। उसके बाद है these ethers are also symmetrical ethers, symmetrical ethers। This is the introduction of ether, symmetrical ethers and unsymmetrical ethers। सिमेट्रिकल ईथर्स, ये भी आपको इजी समझ आएगा। ईथर्स में भी सिमेट्रिकल or they may be unsymmetrical। Those ethers having both the alkyl or aryl groups attached linked to the oxygen atom same। Those ethers where both alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom are same, those are known as symmetrical ether। तो सिमेट्रिकल ईथर्स की मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा। जब वो एग्जांपल से ही आपको समझ आएगा सिमेट्रिकल, सिमेट्री मीन्स गो सेम गो। तो हम लिखेंगे CH3OCH3। This type of, these are known as simple ethers, or these are known as symmetrical ethers, where both the alkyl groups attached to the linked to the oxygen atom are same। This is also methyl, this is methyl।
यानी सिमेट्रिकल ईथर किन को कहते हैं? जब ऑक्सीजन एटम के साथ दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं या एराइल ग्रुप्स हैं वो सेम होंगे, उनको हम कहेंगे सिंपल ईथर्स या कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स, तो आपको समझ आया? सिंपल ईथर्स, इनको हम यह भी कह सकते हैं सिंपल ईथर्स, यानी दोज ईथर्स in which both alkyl groups or aryl groups attached to the oxygen atom are same. Those are known as symmetrical ethers or simple ether. इसी तरह हम लिख सकते हैं C6H5O C6H5. Here the two aryl groups are attached to the oxygen atom are same. यानी those ethers in which the two aryl groups attached to the oxygen atom are same. These are symmetrical. These are also symmetrical ethers. Symmetrical ethers are simple ethers. तो आपको समझ आया? हम इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5O. This is also the example of symmetrical ethers. ये symmetrical ethers क्या है? अब यानी जहां ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जो अल्काइल या एराइल ग्रुप्स होंगे वो एक जैसे होंगे, वो सेम होंगे, उनको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं या कहेंगे उनको हम सिंपल ईथर। तो एग्जांपल ये है। उसके बाद है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल खुद ही समझ आया होगा, यानी दोज ईथर्स having alkyl groups or having different alkyl groups or aryl groups attached to the oxygen atom. Those ethers in which the alkyl groups or aryl groups attached to the oxygen atom are different. Those are known as unsymmetrical ethers. और दूसरा नाम इनको ये भी लिख सकते हैं हम मिक्सड ईथर्स। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा एक एग्जांपल। CH3O C2H5, तो यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये अनसिमेट्रिकल है और ये मिक्सड है, क्योंकि एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं C2H5O C6H5, तो इसको हम लिख सकते हैं फिनाइल इथाइल फिनाइल ईथर। दिस इज आल्सो मिक्सड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आपको सिंपली से याद रखना है, सिमेट्रिकल ईथर्स उनको कहते हैं जिनको जहां ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जो अल्काइल या एराइल ग्रुप्स होंगे वो सेम होंगे, और अनसिमेट्रिकल वो है जहां ऑक्सीजन एटम के साथ जो लिंक्ड अल्काइल या एराइल ग्रुप्स होंगे एक तरफ एक होगा, दूसरी तरफ डिफरेंट, यानी वो डिफरेंट होंगे। Those are known as unsymmetrical ethers, or in other words we can say mixed ethers. This is the classification of ethers. उसके बाद nomenclature of ethers. Nomenclature of ethers. पहले उसका कॉमन सिस्टम है, यानी कॉमन सिस्टम में हम ईथर्स को कैसे नाम दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, तो हम ईथर्स के ये आपको पता है, मैंने पढ़ा है अभी तक। अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द अल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स linked to the oxygen atom. According to the alkyl groups or aryl groups linked to the oxygen atom, they are named according to the alkyl or aryl groups. The alkyl or aryl groups are named followed by the word ether. According to the common system, the alkyl and aryl groups attached to oxygen atom are named followed by the word ether. What does that mean? इसका मतलब है जो ईथर है ये, इसके साथ जो अल्काइल और एराइल ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है, ये इथाइल है, पहले इन अल्काइल और अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स का हम नाम उनको पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में लिखना है ईथर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एंड दीज अल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर नेम्ड अल्फाबेटिकली, दे आर नेम्ड अल्फाबेटिकली मीन्स पहले देखिए अगर इथाइल है ये ई आएगा या एम आएगा उस हिसाब से, तो हम इसको कहेंगे मिथाइल इथाइल पहले, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली ई आता है, फिर लिखेंगे मिथाइल मिथाइल फॉलोड बाय द वर्ड इथाइल। तो सिंपल, यानी मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर,
ethers are named according to the alkyl and aryl groups attached to the oxygen atom. Are named alphabetically. Ethers are named alphabetically according to the alkyl and aryl groups attached to the oxygen atom, followed by the word ether. Followed by the word ether. तो यहां मैंने लिखा CH3O C2H5, तो इसको हम पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे मीथाइल इथाइल ईथर, हम मीथाइल जब पढ़ेंगे ME से बैद में आता है, तो फिर हम अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे इसको इथाइल मीथाइल ईथर. तो अगर हम इस तरह CH3O C6H5O पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम मीथाइल फिनाइल ईथर, मीथाइल फिनाइल ईथर. अगर हम इस तरह लिखेंगे C6H5O C2H5O, ये पढ़ेंगे इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर. तो हम इनको कॉमन नेम से इस तरह भी लिख सकते हैं. देखिए, दिस इज OCH3, इसको हम पढ़ेंगे मीथाइल फिनाइल ईथर. तो इसका कॉमन नेम है एनिसोल, एनिसोल. इस स्ट्रक्चर को एनिसोल भी कॉमन नेम होता है. तो इसका भी कॉमन नेम है. अगर हम इसको इस तरह ये फिनाइल रिंग बनाएंगे, तो रिंग स्ट्रक्चर में OCH2CH3, ये इथाइल, ये फिनाइल ईथर है. इसका नाम है फेनिटोल, फेनिटोल. These are this is the nomenclature of ethers according to the common system. अगर हम इस तरह लिखेंगे C2H5O C2H5O, ये है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर. This question is asked in this question can be asked in the examination. एग्जामिनेशन में आपको ये भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर डाई इथाइल ईथर. जब हम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे, तो वहां ये डाई इथाइल ईथर हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. तो इसको कहेंगे डाई इथाइल ईथर. तो अब अकॉर्डिंग टू, अगर हम इस तरह लिखेंगे, ये मैंने उधर भी दिखाया है C6H पर, इसको पढ़ेंगे डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर. इसका क्या नाम है, ये और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए ये सेम है. इसका नाम है मीथाइल, मीथाइल फिनाइल ईथर, और कॉमन नेम इसका है एनिसोल. इसी तरह है इथाइल फिनाइल ईथर, तो इसका नाम है फेनिटोल. दिस इज द कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स. तो कॉमन सिस्टम है ये. इसी तरह आपको नाम देना है जो आपको उसके साथ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अटैच है. पहले उन अल्काइल और एराइल ग्रुप का नाम पढ़ना है अल्फाबेटिकली, उसके बाद लिखना है लास्ट पर ईथर. अगर दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे तो आपको पढ़ना है डाई मिथाइल, तो लास्ट पर ईथर. अगर इथाइल एक साइड होगा, मिथाइल दूसरी तरफ होगा, तो इथाइल मिथाइल, तो लास्ट पर ईथर. अगर एक साइड फिनाइल दूसरी तरफ इथाइल, तो आपको पढ़ना है इथाइल फिनाइल मिथाइल ईथर. तो दिस इज द कॉमन सिस्टम. उसके बाद है IUPAC, IUPAC system. According to the IUPAC system, ethers are named as alkoxy alkanes. What do you mean by alkoxy alkanes? अगर हमें पास OCH3, according to the IUPAC system, हम इसको पढ़ सकते हैं मिथॉक्सी, वही हो गया एल्कोक्सी. तो मीथेन अल्केन क्या उसके साथ होगा, अटैच क्या होगा? अगर OC2H5 होगा तो इथॉक्सी. यानी अकॉर्डिंग टू द IUPAC system, ethers are named as alkoxy alkanes. The larger alkyl group is considered as the parent chain. That is considered as a parent chain, and the smaller alkyl group attached to the oxygen atom is considered as a ethereal compound. तो इसका मतलब ये होगा, लार्जर चेन जो होगा उसको हम अल्केन, उसको पेरेंट चेन समझेंगे नेमिंग के वक्त, और जो स्मॉलर चेन होगी वो एल्कोक्सी ग्रुप है. तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको पहले इस तरह. जब मैंने आपको अभी बताया था, इसको मैंने कहा था डाईमिथाइल ईथर. तो ये किस नाम पर था डाईमिथाइल ईथर?
ये कॉमन सिस्टम पर था, कॉमन सिस्टम में हम, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं इसको, एक को पढ़ेंगे मिथाइल, इसको कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन। जब IUPAC सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी और एक है मीथेन। अगर हम ये इस तरह होगा CH3O CH2 CH3, तो इसको नंबरिंग करेंगे, इसको यहां से नंबर लगेगा 1 2 1 2, तो हम कहेंगे इसको मिथॉक्सी, ये पेरेंट चेन बनती है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन आइटम्स हैं। इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी, इसको यहां से पढ़ेंगे फिर ईथेन। अगर हम इस तरह ये लिख सकते हैं CH3 CH2 OCH3 CH2 CH3, तो नंबरिंग इस तरह होगी, जहां ये इथेन नजदीक होगा 1 2 3 और 4, इसको हम पढ़ेंगे 2 मिथॉक्सी, तो यहां ब्यूटेन जो आपको मालूम होगा। अगर हम इस तरह लिखेंगे CH3O CH2 CH3, तो इस तरह लिखेंगे CH2 CH3, तो नंबरिंग कहां से होगी, या यहां लिखेंगे CH2 CH3, तो यहां से नंबर लगेगा, चूंकि ये लॉन्ग चेन ये बनेगा 1 2 और 3, चूंकि ये नजदीक इधर आता है, इधर से 4 आता है, 4 5 और 6, इसको पढ़ेंगे 3 मिथॉक्सी, पूरा है हेक्सेन 3। तो मेरे कहने का मतलब है द लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन इज कंसिडर्ड एज ए पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट, अगर यहां से हम करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 7, तो भी 6 आता है, लेकिन यहां ये नजदीक पड़ता है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहें, यहां पर ये मिथॉक्सी है, इसको पढ़ेंगे थ्री मिथॉक्सी, क्योंकि 3 नंबर पर आता है, 3 मिथॉक्सी हेक्सेन। इसी तरह अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे CH3 CH2O CH2 तो CH3 लिखेंगे, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी 1 2 3 4 5, यहां नहीं जाएगा नंबर क्योंकि ये पेरेंट चेन है, इसको हम कहेंगे 2, ये इथेन है, इथॉक्सी 2 ethoxy ethane. This is the IUPAC system of ethers. This was the introduction, classification and the nomenclature of ethers. मैंने ethers को आपको पहले बताया, ethers क्या है, यानी those compounds having O a functional group are known as ethers, and their general form मैंने बताई RO R-, where R and R- may be alkyl or aryl groups, where R and R- may be alkyl or aryl groups. फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया, क्लासिफिकेशन में मैंने बताया एलिफेटिक ईथर्स क्या है, एरोमेटिक ईथर्स क्या है। एलिफेटिक ईथर्स वो है जहां दोनों ग्रुप्स जो अटैच है ऑक्सीजन एटम के साथ वो अल्काइल होंगे। एरोमेटिक ईथर्स वो है जहां एक या दोनों ग्रुप्स जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होंगे वो अल्काइल, वो एराइल होंगे। तो एराइल ईथर्स के एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक ईथर्स के 2 किस्म हैं, अल्काइल एराइल ईथर, जहां एक ग्रुप एराइल होगा अटैच और दूसरा ग्रुप अल्काइल होगा, तो उनको फेनोलिक ईथर्स भी कहते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है एराइल ईथर, जहां दोनों ग्रुप एराइल होंगे, उनको कहते हैं एराइल ईथर्स। तो उसके बाद मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल क्या होगा। सिमेट्रिकल ईथर्स वो ईथर्स हैं जहां ऑक्सीजन एटम के साथ दोनों तरफ जो लिंक होंगे, चाहे वो एराइल ग्रुप हो या अल्काइल ग्रुप हो, वो सेम होंगे, उनको सिंपल ईथर्स कहते हैं या उनको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। उसी तरह अनसिमेट्रिकल या मिक्सड ईथर्स उनको कहते हैं जहां एक तरफ एक अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ डिफरेंट होगा, जहां दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, उनको कहते हैं मिक्सड ईथर्स और उनको कहते हैं ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर में IUPAC सिस्टम में हम
इनको कैसे नाम दे सकते हैं? अल्फाबेटिकली अल्काइल या अराइल ग्रुप जो उनके साथ लिंक होता है ऑक्सीजन एटम के साथ, उनको अल्फाबेटिकली नाम देकर उसके बाद ईथर्स लिखा जाता है. यानी द अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, द ईथर्स आर नेम अकॉर्डिंग टू द कॉमन सिस्टम, द ईथर्स आर नेम्ड alphabetically according to the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom followed by the word ether. तो अगर दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे तो डाइमिथाइल ईथर पढ़ेंगे. अगर इथाइल एक तरफ होगा दूसरी तरफ मिथाइल होगा तो इथाइल मिथाइल ईथर पढ़ेंगे. अगर एक तरफ फिनाइल होगा दूसरी तरफ मिथाइल होगा तो हम पढ़ेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर. अल्फाबेटिकली किस तरह आएगा. तो इसी तरह IUPAC अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ईथर्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोक्सी अल्काइनल. तो जिस तरह मैंने यहाँ आपको ये बताया अल्कोक्सी, ये मिथॉक्सी यहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद ये मीथेन से निकला. इसी तरह यहाँ इथॉक्सी है, ये यहाँ OCH3 इसको कहते हैं मिथॉक्सी, OC2H5 उसको इथॉक्सी. इसी तरह प्रोपेन होगा तो प्रोपॉक्सी होगा. तो इसी तरह मैंने आपको ये दिखाया. अगर उसमें ये किया जाता है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्केन्स होगी उसको पेरेंट चेन मानते हैं. जो शॉर्टेस्ट होती है उसको इथेरल चेन मानते हैं. फिर लॉन्गेस्ट चेन को नंबर दिया जाता है जहाँ नजदीक होता है, फिर नंबर पड़ा उसके बाद. तो उसी तरह मैंने आपको ये दिखाया. यहाँ मीथेन है, यहाँ दो ये लॉन्गेस्ट चेन कराची जाती है, इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी और ये इथेन है. इसी को कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन. This is all about today's topic. Tomorrow we will take the general methods of preparation and the properties of ethers. Okay.